اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پروفیشن کے لیے انتخاب کیا اور 9 سال سے بخوبی آپ اس پروفیشن میں اپنے سب فرائض کو سر انجام دے رہی ہیں. تو کیسا لگتا ہے 9 سال سے اس پروفیشن میں آپ موجود ہیں اور اتنے سارے بچوں کو پڑھاتی ہیں, کیسا لگتا ہے اس پروفیشن کا پارٹ ہوتے ہوئے؟ ٹیچنگ دنیا کا واحد پروفیشن ہے جہاں آپ کو روز کچھ نہ کچھ نیا کرنے کا موقع ملتا ہے. ٹیچر کی لائف اتنی کمال کی ہے دیٹ ایوری ایئر شی گیٹس another bunch of kids with different habits, different names, different surnames. ان کی عادتیں الگ, ان کی چوائسیز الگ. تو ہر سال آپ کو نیا نیا ایک بنچ مل رہا ہوتا ہے بچوں کا. جب آپ کی آڈینس چینج ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کا جو پرفارمنس ہے وہ پورا کا پورا چینج ہو جاتا ہے. when it changes it brings excitement and adventure to your life. ٹیچنگ سے زیادہ جو ہے دنیا کا کوئی بھی پروفیشن ایکسائٹمنٹ نہیں لے کر آتا, ایڈونچر لے کر نہیں آتا. جی السلام علیکم, میرا نام ہے حسین صفدر اور ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ. جیسا کہ آج ہم جانتے ہیں کہ آج 5 اکتوبر ہے, ورلڈ ٹیچرز ڈے. جی ہاں, اساتذہ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اور جب ٹیچرز ڈے کا نام آتا ہے تو یہ بڑا ایک معزز دن ہے. اسی معزز دن ہم نے آج ہمارے ساتھ ہمارے بڑے خصوصی مہمان کو ہم نے دعوت دی ہے آج کے شو کی زینت کو اور مزید بڑھانے کے لیے, جن کا نام زینب محمد ہے اور جن کا تعلق کراچی سے ہے. 9 سال سے ٹیچنگ پروفیشن میں اپنے فرائض کو سر انجام دے رہی ہیں اور یہ ایک رائٹر ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور اس کے علاوہ اور بہت سارے کام کرتی ہیں. مس زینب محمد آن دی شو. جی السلام علیکم میم زینب, کیسی ہیں آپ؟ ویلکم ٹو دی شو. وعلیکم السلام حسین, میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر میم, آل از ویل. میم فرسٹ آف آل ہیپی ٹیچرز ڈے. آج میں بڑا خوش ہوں کہ آج کے دن آپ اس شو کا ہمارا حصہ بنی ہے اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کو شو میں. تھینک یو سو مچ. ہیپی ٹیچرز ڈے ٹو یو ٹو حسین. تو میم آج استاد کا دن ہے, آج ٹیچرز اپریشیشن دن ہے. تو آج استاد کے رتبے اور استاد کے مقام کی تو بات ضرور کریں گے آگے شو میں, لیکن اس سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ آؤٹ آف مینی پروفیشن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پروفیشن کے لیے انتخاب کیا اور 9 سال سے بخوبی آپ اس پروفیشن میں اپنے سب فرائض کو سر انجام دے رہی ہیں. تو کیسا لگتا ہے 9 سال سے اس پروفیشن میں آپ موجود ہیں اور اتنے سارے بچوں کو پڑھاتی ہیں, کیسا لگتا ہے اس پروفیشن کا پارٹ ہوتے ہوئے؟ حسین مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹیچنگ دنیا کا واحد پروفیشن ہے جہاں آپ کو روز کچھ نہ کچھ نیا کرنے کا موقع ملتا ہے. جیسے دوسرے پروفیشنز ہوتے ہیں دنیا میں تو دیر کمز اے ٹائم وین ایوری تھنگ از دا سیم, جہاں زیادہ کوئی چینجز نہیں ہو رہے ہوتے ہیں یا مونوٹنی ہو رہی ہوتی ہے. اب ایک ٹیچر کی لائف اتنی کمال کی ہے دیٹ ایوری ایئر شی گیٹس another bunch of kids with different habits, different names, different surnames. ان کی عادتیں الگ, ان کی چوائسیز الگ. تو ہر سال آپ کو نیا نیا ایک بنچ مل رہا ہوتا ہے بچوں کا, چاہے آپ ایک ہی سبجیکٹ پڑھا رہے ہوں, چاہے آپ ایک ہی بک سے پڑھا رہے ہوں, چاہے آپ ایک ہی آرگنائزیشن میں پڑھا رہے ہوں, مگر جب آپ کی آڈینس چینج ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کا جو پرفارمنس ہے وہ پورا کا پورا چینج ہو جاتا ہے. when it changes it brings excitement and adventure to your life. تو میرے خیال سے ٹیچنگ سے زیادہ جو ہے دنیا کا کوئی بھی پروفیشن ایکسائٹمنٹ نہیں لے کر آتا, ایڈونچر لے کر نہیں آتا. اور میرا ایسا ماننا ہے, میں نے ایسا دیکھا ہے, اتنے سال میں نے گزارے تو مجھے ابھی ایسا لگتا ہے دیٹ آئی ایم بگننگ ناؤ. مجھے اب سمجھ آنے لگا ہے کہ ایک ٹیچر ہونا کیا ہوتا ہے اور ٹیچنگ ایکچولی کیا چیز ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جب تک میں کہیں پر اپنے آپ کو تھوڑا بھی افیکٹو ٹیچر ہونے کے نزدیک دیکھنے لگوں گی تو اس میں تو بہت عرصہ لگے گا, تب تک پتہ نہیں کہاں پہنچ پاتی ہوں اور کیا کر پاتی ہوں. تو آئی بلیو ٹیچنگ is one of the exciting professions of the world. کیوں کہ اس میں بہت روم ہے ایکسائٹمنٹ کے لیے. آپ کو جگہ نہ بھی ملے تو بھی آپ بہت سارا روم بنا لیتے ہیں ایکسائٹمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے, گڈ ٹو نو میم. میم مجھے ایک بات بتائیں کہ آج آپ بچوں کو پڑھاتی ہیں, آپ کے بھی استاد رہے ہوں گے جن سے آپ نے سیکھا ہوگا, جن سے آپ بہت انسپائر ہوتی ہوں گی. تو آپ آج اس شو میں اپنے استادوں کے بارے میں بتانا چاہیں گے کہ آپ کے استاد کیسے تھے اور آج استادوں کی کون سی ایسی باتیں جو کہ آپ کو آج ابھی تک زندگی میں کام آتی ہیں؟ حسین مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو میں بتاؤں گی تو آپ کو سن کر بڑی خوشی ہوگی دیٹ آئی ایم ویری پریویلیجڈ کہ میں ان اسٹوڈنٹس میں سے ہوں جنہوں نے ابھی تک اپنے استادوں کا پیچھا نہیں چھوڑا. میں اب بھی انہی کے ساتھ ہوں, اب ان کے ساتھ پڑھاتی ہوں, صرف فرق اتنا ہے. لیکن یہی ہے کہ ان کی اسٹوڈنٹ ہی ہوں اب تک. اور کسی کو اگر میں بتاؤں کہ میرا چائلڈہڈ کیا رہا تو بڑی حیرت ہوگی آپ کو سن کر. آئی واز ون آف دا نوٹیسٹ اسٹوڈنٹس آف مائی اسکول. مطلب میں نے اپنے اساتذہ ناک میں دم کر کے رکھا تھا, میرا وہ والا حال تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے حسین کے ڈسرسپیکٹفل کبھی نہیں ہوئے.
थोड़ी बहुत शरारतें वगैरह जो हमें काफ़ी थोड़ी लगती थी, लेकिन असातिज़ा जो हैं हमें शेल्टर कर कर के चलते रहे। मुझे अच्छी तरह याद है हुसैन, हमारे स्कूल में देयर वाज अ सीक्रेट पैसेज वे टू टेरेस। तो फेयरवेल पार्टी चल रही थी और एवरीबडी वाज बिजी इन प्लानिंग फॉर द फेयरवेल। आई वुड स्पेशली नेम दैट टीचर, हर नेम इज़ मिस ज़किया मुनव्वर। शी इज़ अ डार्लिंग, अ स्वीट हार्ट, वेरी कंसिडरेट, कैसा होना चाहिए एक टीचर को। तो मुझे वो रास्ता किसी ना किसी तरीके से पता चल गया था, एंड आई वेंट यूजिंग दैट स्टेयरकेस। मैं ऊपर चली गई और थोड़ा टाइम का ट्रैक भूल गई। मेरे हिसाब से मुझे 5-10 मिनट में वापस आ जाना था और कुछ 4 पीरियड गुजर गए ऊपर ही, और अंदाज़ा नहीं रहा। एंड एवरीबडी इन द स्कूल स्टार्टेड सर्चिंग के कहाँ चली गई ज़ैनब, कहाँ चली गई। सब टीचर्स ढूंढने लग गए। उस टीचर को पता था कि ज़ैनब अगर कहीं नहीं मिल रही है तो मुझे किससे पूछना चाहिए। शी वेंट टू दैट चाइल्ड, उन्होंने उस बच्चे से पूछा। उस बच्चे ने रिवील किया कि ज़ैनब जो है चुपके छत के रास्ते से ऊपर चली गई है, और वो अक्सर वहाँ जाती है और आ जाती है, किसी को पता नहीं चलता, लेकिन आज पता चल गया है। देन शी केम अप, बड़े प्यार से, बड़े तरीके से वो मुझे नीचे लेकर आई। जितना डांटना चाहिए, जितना डराना चाहिए, उतना डराया, और मुझसे ये कहा कि अगले दिन तुमको स्कूल नहीं आने देंगे। बट द अदर डे व्हेन आई वेंट टू स्कूल, उन्होंने मुझसे एक जुमला कहा कि देखो, मैं तुम्हारी माँ की जगह पर हूँ, तुमको डांटूं डपटूं कुछ भी करूं, लेकिन अल्टीमेटली तुमको माफ़ करना ही है मैंने। तो मैंने मिस ज़किया से माफ़ करना सीखा, और ये मुझे ज़िंदगी में इतना काम आया है हुसैन, प्रोफेशनली भी, पर्सनली भी काम आता है कि मुझे लगता है कि हम ज़िंदगी में छोटा छोटा कुछ भी अचीव कर पाते हैं तो वो इसी क्वालिटी की वजह से कर पाते हैं, बिकॉज आपके दिमाग से वो तमाम चीज़ें हट जाती हैं जो आपको बॉदर कर रही होती है, बिकॉज आप उनको माफ़ कर चुके होते हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं। तो बड़ा आसान सा सुनाई देता है माफ़ करना, मगर बड़ा मुश्किल है। शी टॉट मी टू फॉरगिव, और वो मैं आज तक अपने साथ लेकर चल रही हूँ। दूसरा, शेख हाशिम भाई, द प्रिंसिपल ऑफ बदरी हाई स्कूल, ही हैज़ बिन माई टीचर एज वेल। तो जिस ज़माने में मैं स्कूल में थी, स्टूडेंट थी, तो वो हमारे स्कूल के हेड मौलिम हुआ करते थे। तो वही सारा मामला था कि मैं बहुत शरारती थी, बहुत तंग करती थी। फिर जब मैं ग्रेजुएट कर लिया, सब शादी हो गई, दूसरे स्कूल्स में पढ़ाना शुरू किया, एंड देन सडनली आई केम बैक टू बदरी हाई स्कूल वन सिंगल डे। He appointed me as a teacher, and then when I went to a class which was very famous in the whole school for their tough times that they gave to the teacher, मैं क्लासरूम में एंटर हुई, बच्चों ने मुझे बहुत परेशान किया, मुझे समझ में नहीं आया। आई वेंट टू द हेड एंड टोल्ड हर कि मैं जो है इस क्लास में कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज चेंज माई क्लास। शी सेड क्लास तो चेंज नहीं कर सकती हूँ, आप कंटिन्यू करें। दूसरे दिन फिर गई, फिर बच्चों ने बहुत तंग किया। आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड, आई डायरेक्टली वेंट टू जनाब। मैंने उनसे कहा कि मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कैसे पढ़ाऊँ इन बच्चों को। सो ही स्टार्टेड आस्किंग मी कि आपने क्या क्या ट्राई किया, आपने क्या ट्राई किया। मैंने कहा जनाब मैंने इनको पनिश भी दे दिया, मैंने इनको जो है घर पे इनकी डायरी में नोट भी लिख के भेज दिया। आई हैव डन ईच एंड एवरीथिंग विद देम। माय प्रिंसिपल एंड माय टीचर, ही आस्क्ड मी, ज़ैनब आपने दोस्ती करना ट्राई किया? मैं सेड नहीं जनाब, मैंने वो ट्राई नहीं किया। सेड आज जाके इन देयर ओन लैंग्वेज, जिस तरह से वो बात करते हैं उसी तरीके से उनसे दोस्ती कर लो, दे विल नॉट गिव यू अ टफ टाइम। एंड दैट एक्चुअली हैपेंड। तो अभी भी मैं उनके चलने से, उनके उठने बैठने से, मिस नफीसा अब्दुल्ला, मिस शेरे बानू कुरैश, उसके अलावा मिस फरीदा फ़खरुद्दीन, मिस हबीबा खुज़ैमा, मिस तस्नीम आमिर, इन सब ये तमाम टीचर्स अब तक मेरे साथ हैं, और वो जो अब नहीं है। एक फ़ायदा इनके अब तक साथ रहने का ये हुसैन कि मुझे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी ये कई सारी बातें सिखा पाते हैं। मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, मैं इनके पास जाती हूँ और इनका सालों का तजर्बा काम आता है। तो मेरी जो छोटी छोटी कामयाबियाँ हैं ना, इनके पीछे असल में इनके तजर्बात काम कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं है। So nice to hear, ma'am, that you have a wonderful story to share with us. मैम ज़ैनब, मुझे बताएं कि आप अपने एक्सपीरियंस से इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा कि हर एक बच्चे का फेवरेट टीचर होता है, ठीक है, और बच्चा कोशिश करता है कि वो अच्छे मार्क्स ला के टीचर के करीब आ जाए, ठीक है, या बच्चे की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि टीचर ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है। तो वैसे ही एक टीचर का भी एक फेवरेट स्टूडेंट होता है। मुझे ये बताएं कि एक टीचर अपने स्टूडेंट को किस तरह फेवरेट बनाती है, क्या चीज़ें वो एक बच्चे में तलाश करती हैं कि वो बच्चा उसका फेवरेट बन जाता है। अगर आप ये फिर वही वाली बात हो जाएगी हुसैन कि मुझे बहुत सारे शूज़ में अपने आप को रख के सोचना होगा। ये एक तो टीचर की पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता है। जैसे बहुत से टीचर्स खुद बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो उनको ऑर्गेनाइज्ड बच्चे अच्छे लगते हैं। कुछ टीचर्स खुद बड़े बबली होते हैं तो उनको वैसे ही बच्चे अच्छे लगते हैं। कुछ टीचर्स जो है खुद बड़े फर्म और बहुत स्टडियस टाइप के होते हैं तो उनको भी उस तरीके के बच्चे अच्छे लगते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक कॉमन ग्राउंड हम देखें कि अगर मुझसे कोई पूछे कि एक लिस्ट बनाओ
کہ تمہاری نظر میں تمہارا فیوریٹ اسٹوڈنٹ جو بھی ہو اس کے اندر یہ کوالٹیز ہونی چاہیے. تو میں ٹاپ پہ رکھوں گی گریٹفلنس, شکر گزاری. جس بلڈنگ میں بیٹھے ہو, جس بلڈنگ میں آپ بیٹھے ہو اور جس ٹیچر سے آپ نے پڑھا ہے, جس کتاب سے آپ پڑھ رہے ہو, جن والدین سے مل کر آ رہے ہو, جس گھر سے نکل کر آ رہے ہو, وہ دنیا کا بہترین گھر ہے, وہ دنیا کا بہترین اسکول ہے, وہ دنیا کا بہترین ٹیچر ہے. برائی کس چیز میں نہیں ہوتی. ایوری ون از امپرفیکٹ, ایوری تھنگ از امپرفیکٹ, لیکن ان تمام برائیوں کے باوجود آپ کو وقت دے رہا ہے, دیٹ پرسن از دا بیسٹ پرسن ان دا ورلڈ. تو میرے خیال سے وہ بچہ جو گریٹفل رہتا ہے, مس تھینک یو سر, تھینک یو مس, تھینک یو سر, تھینک یو. تھینک یو بڑا چھوٹا سا ورڈ ہے. کئی بار بچے کہہ دیتے ہیں تھینک یو چھٹی میں, جب اینڈ ہونے لگتی ہے کلاس تو سب کھڑے ہو کے ایک ساتھ تھینک یو ٹیچر, بٹ دے ڈونٹ فیل اٹ, فیل نہیں کر پاتے اس کو. تو گریٹفلنس اور ایکنالجمنٹ بہت ضروری ہے. مجھے لگتا ہے میں زندگی کی کسی بھی اسٹیج میں پہنچ جاؤں, میں ہر اسٹیج پر اسی طریقے سے اپنے ٹیچرس کو اکنالج کرتی رہوں گی, بیکاز آئی ایم گریٹفل ٹو دیم. تو میری عادت ہے, تو مجھے بھی ایسا ہی اسٹوڈنٹ چاہیے ہوتا ہے. میری بھی پہلی تلاش ہی ہوتی ہے کہ میرا اسٹوڈنٹ گریٹفل ہو, صرف میرے لیے نہیں, تمام ٹیچرس جو کلاس میں آتے ہیں اس کو پڑھاتے ہیں, بلڈنگ, پیون, ایچ اینڈ ایوری بڈی ہو از اٹیچ ٹو دیٹ پرسن, وہ شخص اس پرسن کے ساتھ گریٹفلنس شو کرے. ایکسلنٹ میڈم زینب, آج آپ نے ابھی بتایا کہ استاد اور جو طالب علم کا رشتہ ہے اس میں ایک شکر گزاری بہت زیادہ معنی رکھتی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ رشتہ بڑا محبت والا ہوتا ہے, بڑا مضبوط ہوتا ہے, بڑا خلوص سے بھرپور ہوتا ہے. لیکن مگر مجھے بتائیں کہ ایک استاد میں خود کون سی ایسی صفات کا ہونا بڑا ضروری ہے؟ بالکل حسین, اساتذہ کی صفات تو جو ہے نا زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں. جب میں شاید اسٹوڈنٹ ہوا کرتی تھی تب شاید ڈیڈیکیشن, ڈیووشن, پنکچویلٹی, ریگولیرٹی, سبجیکٹ کنٹینٹ کی ایکسپرٹیز اور ان چیزوں سے کام چل جاتا تھا. بٹ ون آف دا ویری امپورٹنٹ کوالٹیز دیٹ اے ٹیچر شوڈ ہیو از اڈیپٹیبلٹی. زمانہ آپ کے سامنے جو پھینکے, جیسے حالات ہوں, ان حالات کے مطابق ڈھل جانا ہی ایک کامیاب ٹیچر کی جو ہے نشانی ہے. ابھی جیسے کووڈ تھا, ہم نے دیکھا کئی اسکولس میں ڈاؤن سائزنگ ہوئی, کئی اسکولس میں نئے سافٹ ویئر امپلیمنٹ ہو رہے تھے. تو ایسے میں فیس بک واز دا رائٹ پلیس ٹو سی ہیومن ریئیکشنز. ہم نے کئی ایسے ٹیچرس کو پوسٹ کرتے ہوئے دیکھا اپنے مینجمنٹ کے خلاف, اپنے پیرنٹس کے خلاف, اپنے اسٹوڈنٹس کے خلاف, دے آر گیونگ می اے ٹف ٹائم, میری مینجمنٹ کہتی ہے کہ یہ کرو, ایسے کرو, یہ اپلیکیشن یوز کرو, وہ اپلیکیشن یوز کرو. آئی فیل کوئی آپ سے کچھ بھی کہتا ہے, بٹ اف دیٹ پرسن از ٹیلنگ یو دا رائٹ وے ٹو ڈو دیٹ تھنگ, تو وائی ناٹ, وائی کیوں کہنا, وائی ناٹ کیوں نہ کہنا. تو میرے خیال سے اڈیپٹیبلٹی از اے ویری 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 امپورٹنٹ ٹریٹ. جیسا بھی ماحول ہو, جیسی بھی سچویشن ہو, آپ کو جو ٹاسک دیا جائے, آپ کو جو چیزیں دی جائے, اگر آپ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ ٹاسک کر لیتے ہیں حسین, تو آپ ایک سکسیزفل انسان ہیں. ٹیچر آتا ہے بعد میں. اس کے علاوہ ڈیڈیکیشن, ڈیووشن, پنکچویلٹی, ریگولیرٹی, یہ تو ہمارے پیرنٹس اور ہمارے گرینڈ پیرنٹس کے زمانے سے چل رہے ہیں. ایک اور چیز جو مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے, اور وہ چیز یہ ہے کہ ٹیکنیکلی ٹیچر کا ساؤنڈ ہونا بہت ضروری ہے, چاہے کووڈ ہو چاہے نہ ہو, چاہے آن لائن کلاسز ہو چاہے نہ ہو, بیکاز آپ جن لرنرس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں دے آر ٹیکنیکلی ویری اویئر, وہ بہت آگے ہیں آپ سے آلریڈی. تو آپ کے لیے بہت امپیریٹو ہو جاتا ہے کہ آپ کو بھی وہ سب آنا چاہیے جو ان کو آتا ہے, کیونکہ جب آپ کو چائنیز آتی ہے اور مجھے چائنیز آتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اٹس ہیومن سائیکالوجی. اگر میں آپ سے آپ کی نیٹو زبان میں بات کرتی ہوں حسین, تو اثر ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر آپ کو نہیں جانتی ہوں اور آپ سے کوئی کام کروانا ہے, تو آپ کا نام پتا کر کے آپ سے کہہ دوں گی حسین آپ یہ کام کر دیں گے, آپ وہ ضرور کر دیں گے, ضرور کر دیں گے, کیونکہ میں نے آپ کا نام لے کر آپ کو مخاطب کیا. تو ان چیزوں کا ایک افیکٹ ہوتا ہے. تو اف وی کم آن دا سیم گراؤنڈ ایز اسٹوڈنٹس, تو شاید ہم بچوں کو, جیسے ابھی جو کام آپ کر رہے ہیں حسین, آئی سمپلی اپریشیٹ یو. اپریسیشن سے بڑا کوئی ورڈ نہیں ہے میرے پاس آپ کے لیے. یوزنگ دا سوشل میڈیا پروڈکٹیولی, تو جو بچے ہیں ہمارے, جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کو, تو ان کو یہ بتانے کے بجائے یا ان کو اس سے لکھوانے کے بجائے مس یوزز آف سوشل میڈیا, اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسا رول ماڈل کریں کہ بچہ دیکھ کر سیکھے. that social media can be used as positively as Hussain Safdar does. تھینک یو میم فار سچ اپریشیشن. میں کوشش کرتا ہوں پوری طرح کہ جو بھی مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ ان پہ تھوڑا سا پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کر سکوں. اور جو میرے ٹیچرز ہیں جس کو میں آج
जो मेरे शो का हिस्सा बनी है। जब मैं उनसे पहली बार जब मैं मिला था तो मुझे सबसे पहले ऐसा फील हुआ था कि मैं उस इंसान से बात कर रहा हूँ कि शायद मैं उनसे कई सालों से जानता हूँ, मैं इतना इजीली आपसे कनेक्ट हो गया था। और मैं इस बात का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरे नज़दीक वही इंसानों को लेकर आता है जो कि मेरे लिए हेल्पफुल और यूज़फुल है। और सारा नियतों का आई खेल है रियली हुसैन। थैंक आज जी जी। और आज टीचर्स डे पे तो मैं वो सारे टीचर्स को अप्रिशिएट डेफिनेटली बनता है, क्योंकि छोटी छोटी बात, चाहे वो छोटी सी उम्मीद जगाना किसी बच्चे के अंदर, चाहे वो पीछे थपकी देना, ये बड़ा शायद बड़ी छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है या जो इसका असर है वो बहुत ज़्यादा लंबी टाइम तक या बड़े बल्कि पूरे सालों तक रहता है। मैम आज मुझे बताएं कि उस्ताद का एक रुतबा तो है, एक उस्ताद एक टीचर है, मुझे सोसाइटी में एज अ उस्ताद के मकाम के हवाले से ज़रा मुझे बताएं कि उस्ताद का जो मकाम है जो हमारे माशरे के अंदर वो कैसा है, लोग उसे कैसा परसीव करते हैं, और जहाँ आउटसाइड क्लासरूम बच्चे उस्ताद को कैसा मानते हैं? ये भी हुसैन, इस सवाल को मैं थोड़ा सा, सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलूं कि अगर हमें ये देखना है कि सोसाइटी उस्ताद को कैसा परसीव करती है या बच्चे कैसा परसीव करते हैं, तो वो करने से पहले हमको ये देखना है कि वो उस्ताद खुद को कैसे परसीव करता है। बिकॉज हम ये देखते हैं कि जहाँ असातिज़ा खुद अपनी जॉब की वैल्यू नहीं करते, जहाँ असातिज़ा खुद ये कहते हैं मैं टीचर हूँ बस, 9 से सुबह 7 से 12, 8 से 2, बस और कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं होता हमारे स्कूल में, तो हम तो किताब खोल के पढ़ा देते हैं। अरे हम कुछ नहीं करते भाई, हम तो जितनी तनख्वाह मिलती है उससे ज्यादा एक लाइन नहीं खींचते। तो जब आप खुद अपने पेशे को बदनाम करते हैं, जब आप खुद अपने पेशे को ऑन नहीं करते, जब आप ये कहते हैं अरे तुम्हें कुछ नहीं आता, तुमने मैट्रिक कर लिया, चलो टीचर बन जाओ, टीचर तो कोई भी बन जाता है, मेरे स्कूल में आ जाओ, मैं लगवा दूंगी। तो जब हम खुद ऐसा करते हैं तो फिर हम माशरे को इनडायरेक्टली खुद ये मैसेज देते हैं कि दुनिया का सबसे आसान काम है टीचर बनना, हालांकि इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है टीचर बनना। उसे आप देखिए कई सारे ऐसे रेवर्ड टीचर्स हैं, कई सारे ऐसे रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं जो रास्ते से गुजरते हैं तो लोग दौड़ के जाते हैं उनके पास, उनसे बात करने के लिए वक्त निकालते हैं, उनके अल्फाज सुनने के लिए खासतौर पे वक्त निकालते हैं, क्योंकि वो टीचर्स खुद अपनी कदर करते हैं। वो टीचर्स कभी कोई ऐसी बात नहीं करते अपने प्रोफेशन के लिए, अपने आप के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बुराइयां हर जगह होती है, फ्लॉज, फॉल्ट्स हर इंसान में, हर सिस्टम में होते हैं, लेकिन अगर मैं किसी इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हूँ तो ये मेरा फर्ज बनता है कि अगर मैं उसकी अच्छी बात नहीं कर सकती तो कम से कम बुरी बात भी ना करूँ। मुझे अगर वो इंस्टीट्यूशन पसंद नहीं है एज अ प्रोफेशनल प्लेस तो मैं उसको ट्वीट करके आगे बढ़ जाऊँ, लेकिन उसके लिए कम से कम कोई बुरी बात ना करूँ, उसके लिए कम से कम कोई ऐसी बात ना करूँ। कभी कभार मैंने कई दफा हुसैन देखा है, मैंने 5 डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ाया है, कई क्लासेस में मैंने ऐसा देखा है कि 2 टीचर्स क्लासरूम में खड़े होकर मैनेजमेंट की बुराई कर रही होती है बच्चों के सामने, या बच्चों के साथ ही मैनेजमेंट की बुराई कर रही होती है। इस हद तक भी मामला तो जब आप खुद ऐसा करते हैं तो फिर आप कैसे परसीव कर सकते हैं कि कोई बड़ा होकर या कोई स्टूडेंट ये बोले कि मुझे टीचर बनना है, जब आप खुद ये कहते हैं कि मुझे क्या तनख्वाह मिलती है, कचरा तनख्वाह देते हैं ये लोग और काम इतना कराते हैं। जब आप खुद ये कहते हैं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो 40 बच्चे बैठे हैं क्लास में, इनमें से कोई एक बोले कि मुझे टीचर बनना है। जब आप खुद अपने प्रोफेशन को ऑन करते हैं, जब आपके बच्चे आपसे पूछते हैं कि मिस आपका क्या रोल, क्या आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है या टीचिंग में क्या स्कोप है, जब आप उनको बताते हैं कि मैं बहुत अच्छा कमाती हूँ, मैं बहुत अच्छा कमाता हूँ, मेरी बहुत इज्जत है, मैं लोगों में चलता हूँ तो लोग मुझे पहचान लेते हैं कि देखो मिस ज़ैनब जा रही है, देखो हुसैन अब्बा जा रहा है, तो इस तरीके का एनवायरनमेंट खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है कि लोग टीचर बनना चाहते हैं। तो आप देखिए यूनिवर्सिटी टीचिंग में हुसैन, जब हम लोग कॉलेज में जाते हैं या जब हम यूनिवर्सिटी में होते हैं हुसैन, मैं और आप तो हम तो रह चुके हैं इन चीज़ों में, जो अच्छा सा वेल ड्रेस्ड टीचर होता है तो हम क्या सोचते हैं कि जिस दिन मेरी डिग्री कंप्लीट हुई मैं यूनिवर्सिटी टीचर जरूर बनूंगा, यार कितने मजे हैं इनके, 1 घंटा पढ़ाते हैं, पैसे लेके निकल जाते हैं। ख्याल है, जहन में आता है, हालांकि वो टीचर्स सारा दिन प्लानिंग कर रहे होते हैं, सारा दिन प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी लेवल के टीचर्स कहीं ज्यादा अपने प्रोफेशन को ऑन करते हैं स्कूल लेवल के टीचर्स के मुकाबले। तो इसी वजह से जब आप इतने बड़े हो जाते हैं और जब आप आइडियलाइज कर रहे होते हैं लोगों को, तो आपको कपड़े, आपको सैलरी, आपको गाड़ी, आपको आराम नजर आता है, तो आप फौरन कह देते हैं कि मुझे यूनिवर्सिटी टीचर बनना है। तो ऐसा नहीं है, उनको भी आराम नहीं होता है, जस्ट डिफ्रेंशिएटिंग कैसा है। तो जैसा पोर्ट्रे करते हैं हम,
अगर मैं अच्छी बात करूंगी तो मुझे माशरे से इज्जत मिलेगी, लेकिन अगर मैं खुद ही अपने प्रोफेशन के बारे में बुरा भला बोलूंगी कि तंग करते हैं, सैटरडे को बुलाते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, तो इज्जत तो नहीं मिल सकती। लेकिन लोग डरेंगे बात करने से कि ये तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है वहाँ की बातें करती है, तो कहीं हमारी बातें भी किसी और के साथ करेगी। बड़ा साइकोलॉजिकल सा एस्पेक्ट है ये। Yes. Okay, ma'am, are you listening me? Yes, Am I I can. audible to you? Yes. Okay. Actually, Okay. I think Ma'am, time yes, okay. तो मैम यहाँ हमारे एक दोस्त ने हमसे सवाल पूछा है, हुसैन मानी वाला ने। सलाम, वालेकुम सलाम। What is the hardest part of teaching? इस पे आप थोड़ी रोशनी डालिए मैम। बहुत सारे होते हैं और डिफरेंट फेजेस में चेंज होते रहते हैं। एग्जामिनेशन का जब टाइम नजदीक आता है तो मतलब मुझसे पूछेंगे तो मुझसे आपको बड़े रंगीन आंसर्स आपको मिलेंगे। एग्जाम का टाइम करीब आता है तो मुझे पेपर बनाना बहुत मुश्किल लगता है। बहुत आखिरी दिन में पेपर जाके देने वाले, पेपर जमा कराने वाले टीचर्स में से मैं पहले नंबर पे हूँ। आखिरी दिन बिल्कुल जब पेपर हो जाते हैं तो चेकिंग करना उस वक्त सबसे मुश्किल लग रहा होता है। जब साल खत्म हो जाता है तो नए साल की प्लानिंग के लिए जब हम बोर्ड्स बना रहे होते हैं, हम पूरा जो मैक्रो करिकुलम जब हम बना रहे होते हैं कि मुझे क्या क्या एस्पेक्ट्स पढ़ाने हैं, मुझे तब ये सबसे मुश्किल लग रहा होता है। क्लासेस शुरू हो जाती है तो मुझे रोज का लेसन प्लान बनाना रोज के रोज सबसे मुश्किल लग रहा होता है। तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। लेकिन अगर एक जनरल पर्सपेक्टिव पे हम बात करें, सबसे मुश्किल चीज, सबसे मुश्किल फीलिंग जो मैं फील करती हूँ अक्सर, वो ये होती है कि जब आप कुछ करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं और वो इग्नोर हो जाता है या उस पर आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलती है आपके मातहत से, आपके हेड से, आपके मैनेजमेंट से, तो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी पीछे खींचती है। और वो फीलिंग, उसको ओवरकम करके मूव करना, जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ना इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ टीचिंग। और अगर आप वो कर लेते हैं उसे, तो फिर आप एप्रिसिएशन के मोहताज नहीं रहते, आप मोहताज हो जाते हैं कंटेंटमेंट के, कनात के। और जब आपको कनात आ जाती है तो आप बढ़ जाते हैं आगे। Yes, 100%। मैम जैसे कि आपकी प्रोफाइल पे हमने चीज़ें पढ़ी थी कि आप राइटर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, रिसर्चर हैं बिसाइड टीचिंग। तो मुझे ज़रा बताएं कि एक टीचर में मोटिवेशन का एलिमेंट होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वर्क एथिक बच्चों में क्रिएट करवाना, बिकॉज एथिकल एजुकेशन इज़ मॉरल वैल्यूज़ और एथिक्स क्रिएट करना बच्चों में ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिसाइड कंटेंट। तो ज़रा इस पर ज़रा थोड़ी रोशनी डाल के मोटिवेशनल एलिमेंट एक टीचर के अंदर होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Teaching is all about three things, Hussein. It is about your head, it is about your hand, and it is about your heart. आपके of course आपकी कॉग्निशन को अफेक्ट करे, आपके दिल को छू जाए, लेकिन दिमाग और दिल के इस मिक्सचर से, इस मिलन से वो आपके हाथों के जरिए, आपके अमल के जरिए बाहर आए। तो ऐसा करने के लिए टीचर को मोटिवेटर होना बहुत जरूरी है। इफ आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट समथिंग, लेकिन मैं क्लासरूम में जाकर आपको वैसा फील नहीं करवा पाती हुसैन, तो यू विल एब्सोल्युटली नॉट फील द वे आई फील अबाउट इट। टीचर का ऑब्जेक्टिव कब अचीव होता है? मैंने लिखा है कि आज मेरे बच्चे क्लासरूम में एडवर्ब्स का इस्तेमाल कर सके सेंटेंसेस में, लेकिन जब मैंने स्टेटमेंट को लिखा प्लानर पे तो मेरे जहन में एक डिग्री थी कि इस डिग्री तक मेरे बच्चे चले जाएं, 5 एडजेक्टिव्स एक साथ इस्तेमाल कर ले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो मेरा ऑब्जेक्टिव कब अचीव होता है? जब मेरे बच्चे ये 5 एडजेक्टिव्स एक साथ इस्तेमाल कर ले एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। मुश्किल से अचीव होता है। मुझे नहीं चाहिए कि मैं किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज को मद्देनजर ला करके थोड़ा भी कहीं नीचे सेटल डाउन हो जाऊं। ऐसा करने के लिए बहुत जरूरी है कि मैं बच्चों को वो फील करवाऊं जो मैं फील करती हूँ अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि जब तक वो फील नहीं करेंगे जो मैं करती हूँ, तब तक वो मेरे वाली मेहनत नहीं करेंगे। साइंस पढ़ाती हूँ और फॉर एग्जांपल फिजिक्स पढ़ा रही हूँ और इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा रही हूँ, इक्वेशंस ऑफ मोशन। मैं उनको ये बता रही हूँ कि ये तो फिजिक्स की बुनियाद है, तो मेरे बोलने से कुछ नहीं होता। मैं जब छोटी थी हुसैन, तो मुझसे हमेशा कहा गया कि कायदे आजम बानी है पाकिस्तान है। मुझे कभी फील नहीं हुआ हाँ थे कायदे आजम, चलो
मैंने कभी कोई दिल से कोई रिस्पेक्ट नहीं की, कायदे आज़म की तस्वीर का स्टेटस लगाते हुए भी मुझे कुछ फील नहीं हुआ। हमारी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर डॉक्टर अजीज साहब, हमारे एक्स डीन थे, एक दफ़ा क्लास में वो जिक्र कर रहे थे कायदे आज़म का, जिक्र किया कायदे आज़म बानिए पाकिस्तान, में सुनती रही बैठ के इंडिफरेंस फेस पे, क्या करना है पता है, बचपन से सुन रही हूँ बानिए पाकिस्तान। देन ही टोल्ड अस समथिंग अबाउट कायदे आज़म व्हिच आई डिड नॉट नो। ही ऑल्सो टोल्ड अस कि कायदे आज़म जब वो लॉयर होते थे और जब वो कोई केस लड़ने के लिए जाते थे तो हिज साइन ऑफ विक्ट्री वाज दैट ही वुड वेयर अ वाइट कोट। और फिर उन्होंने कायदे आज़म की जिंदगी के कुछ एक दो वाकयात ऐसे सुनाए दैट अगर मैं इंग्लिश में कहूँ दैट माई जॉ ड्रॉप्ड एंड इट टच्ड द फ्लोर तो बिल्कुल सही होगा। और फिर अब मुझसे कोई कायदे आज़म की बात करे हुसैन तो मेरे दिल से बात निकलती है, मैं दिल से इज्जत करती हूँ, बिकॉज दैट टीचर मेड मी फील कि कायदे आज़म बानिए पाकिस्तान है, कायदे आज़म बानिए पाकिस्तान है। जब मैं वो चीज कहती हूँ तो वो मेरी रूह से निकलती है बात, क्योंकि उन्होंने मुझे वो फील करवाया जो वो फील करते हैं। तो जब आप किसी को कुछ फील करवाना चाहें तो उस चीज को लेकर इतना एक्साइटेड और इतना मोटिवेटेड आपको खुद होना पड़ता है, तभी आप अगले को कन्विंस कर पाते हैं। तो आई फील दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। तो आई फील अगर कंटेंट को ऐसे पढ़ाया जाए कि वैल्यू एसोसिएटेड हो, फीलिंग्स एसोसिएटेड हो, पर्सनल अटैचमेंट हो, तो मुश्किल नहीं होती है। एक्सीलेंट। मैं हमारे साथ यहाँ हुसैन मानीवाला ने एक और आपके लिए सवाल अर्ज किया है कि जैसे कि आपने फरमाया कि टीचिंग इज द हार्डेस्ट जॉब ऑफ ऑल, तो हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ सो यू डोंट बर्न आउट? ये मैं बहुत अजीब हूँ, तो मैं जो भी कहूँ तो प्लीज वो कोई ना करे, क्योंकि मैं करती हूँ तो मेरे लिए सही रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जब मैंने शादी के बाद पढ़ना शुरू किया हुसैन तो इट वाज वेरी टफ फॉर मी, क्योंकि शायद इनिशियल चीज़ें थी बहुत, और उस ज़माने में सोना बहुत कम हो गया, बहुत कम नींद है मेरी 3-4 घंटे, और जब बहुत सारी जमा हो जाती है तो किसी भी दिन एक दिन आराम से 8-9 घंटे सो लेती हूँ, इनफ है मेरे लिए। इसके अलावा बर्नआउट करने के लिए मुझे जब नींद नहीं आती है तो आई स्टार्ट राइटिंग। मैं अपना मोबाइल उठाती हूँ और मैं लिखती भी कैसे हूँ आप सुनेंगे तो शायद आपको हंसी आएगी। मैं मोबाइल उठाती हूँ, फेसबुक खोलती हूँ, फेसबुक पे लिखना शुरू करती हूँ मैं, और मैं लिखना शुरू कर देती हूँ, बस आई राइट लाइक दिस। मैं ऐसे करती हूँ तो मेरा जो भी मेरे दिल में होता है वो निकल जाता है उधर, और मैं सो जाती हूँ आराम से। और इसके अलावा कैसे बर्नआउट करती हूँ मैं, आई रीड अ लॉट, आई रीड लाइक क्रेजी। मतलब इस साल जब साल शुरू हुआ तो आई डिसाइडेड कि मैं 3 दिन में एक किताब खत्म करूंगी, और एक किताब इंग्लिश की और एक किताब उर्दू की। तो मैं 3 दिन में तो नहीं कर पा रही हूँ, 6-7 दिन मुझे लग रहे हैं, लेकिन मैं 6-7 दिन के अंदर 2-2 बुक्स खत्म कर रही हूँ। तो मेरा बर्नआउट ऐसे है, मेरा डी स्ट्रेसिंग ऐसे होता है। या बर्तन धो लेती हूँ, पुराने बर्तन निकाल के वापस धो लेती हूँ। थोड़ी औरतें थोड़ी ऐसी ही होती है, तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मेरे जवाबात को आप ज्यादा सीरियस नहीं लीजिएगा, लेकिन अपना ख्याल रखना चाहिए। मुझे लिखने से और पढ़ने से खुशी मिलती है तो मैं वो काम करती हूँ। अगर आप इसको एक जेनरिक लेवल पर ले जाएं, अगर आपको दोस्तों के साथ रहने से खुशी मिलती है तो आप वो काम करें। आप बर्नआउट हो जाएंगे, आप बर्नआउट तो नहीं होंगे, आपका जो स्ट्रेस है आप वो सारा निकल जाएगा। अगर आपको मूवीज देखने से खुशी मिलती है तो वो कर लें, तो वो काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है। और जब आप वो काम कर लेते हैं तो आप काफ़ी हल्का फील करते हैं, आप काफ़ी कनेक्टेड फील करते हैं। जहन में हमेशा अपने मकसद को रखने से एक आसानी ये होती है कि वो आपकी नज़र के सामने से कभी भी नहीं हटता। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ भी करें, डी स्ट्रेस भी कर रहे हो अगर, तो उसको बड़ा लंबा ना कर दें, अपना डी स्ट्रेस का भी टाइम रख लें। अगर फ्रेंड्स में जा रहा हूँ डी स्ट्रेस करने के लिए तो 2-3 घंटा, बस उससे ज़्यादा जाऊँगा तो शायद मकसद से हट जाऊँगा। तो वो करना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। ऐसा करते हैं तो अपना ख्याल रख सकते हैं। ठीक है मैडम, तो आज इस सेगमेंट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मैडम, एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को अपनी जिंदगी में 2 ही उस्ताद याद रहते हैं, या तो वो बड़े प्यार और मोहब्बत से पढ़ाए, या तो वो बड़ा स्ट्रिक्ट हो। तो आप कौन सी टीचर है, आप किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाती हैं? अगर आप बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे स्ट्रिक्ट कहेंगे तो मैं ये कह दूँ, हो सकता है कोई बच्चा सुन रहा हो और बोले कि मैं प्यार मोहब्बत वाला झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि बच्चों को मेरे ख्याल से डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं हुसैन। कभी कभार आपको प्यार मोहब्बत वाला टीचर बनना पड़ता है, कभी कभार आपको स्ट्रिक्ट टीचर बनना पड़ता है। मैं जो लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी अपने लिए, जो कि मैंने खुद चुना है जानबूझकर वो रास्ता, आई थिंक दैट इज़ बीइंग फर्म। आई बिलीव मैं फन लविंग हूँ, ह्यूमरस हूँ, लेकिन
बात आती है जब काम की, बात आती है जब एकेडमिक्स की, बात आती है जब असाइनमेंट की, बात आती है जब कमिटमेंट की, तो फिर मैं बड़ी फर्म हूँ। और मेरे बच्चे इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं, बिकॉज दे नो दैट इस मामले में वी कैन नॉट लाइक हासिल है, तो नहीं करते। ऐसा कोई मामला आता ही नहीं है जहाँ मुझे अपना जो दूसरा साइड है वो रिवील करना पड़े। यूजुअली ये हो रहा होता है हुसैन कि एक बहन पढ़ के जाती है, फिर उसका भाई पढ़ आ रहा होता है, और वो बहन पहले से अपने भाई को बता देती है कि देखो वो टीचर ऐसी है, वो टीचर ऐसी है। द भाई नोज that whatever I do, but I don't have to mess up with my assignments, I don't have to mess up with my academic performance, then all is fine. ठीक है, तो मैडम बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू रही आपके साथ। मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक अच्छा सा प्यारा सा मैसेज तमाम टीचर्स के लिए, जो कि आपको देखकर अब मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर और मोटिवेट हुए होंगे, और ये कोशिश में रहेंगे कि वो आपके जैसा बने। आप जिस तरह कोशिश करती हैं, आप जिस तरह पढ़ाती हैं, और आप जितना हार्डवर्क इस प्रोफेशन के लिए अपना देती हैं, और पूरी कोशिश करती हैं कि इस प्रोफेशन में आप जो आपके फ़राइज़ हैं वो और भी ज़्यादा मज़ीद बखूबी सर अंजाम हो सके। तो एक अच्छा सा प्यारा सा मैसेज उन तमाम टीचर्स के लिए। हुसैन, अभी तो मैं बिल्कुल भी कोई मेरे जैसा ना बने, आई एम नॉट द स्टैंडर्ड, मैं तो खुद अभी बन रही हूँ। तो बस यही कहूँगी दैट मुझे ऐसा लगता है कि लर्निंग नेवर स्टॉप्स। मतलब ज़िंदगी का कोई भी लम्हा आ जाए, आपको किसी एक टीचर का या किसी एक सब्जेक्ट का स्टूडेंट रहने से कहीं बेहतर है कि आप ज़िंदगी के स्टूडेंट बन जाएं। और जब आप ज़िंदगी के स्टूडेंट बन जाते हैं हुसैन, तो फिर आप हर चीज़ से सीख रहे होते हैं। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक फ़िलॉसफी को अपनाई हुई है, और बस वो फ़िलॉसफी समझने की मेरी लाइफ फ़िलॉसफी है, वही फ़िलॉसफी मेरी टीचिंग फ़िलॉसफी है, और वही फ़िलॉसफी मेरी पेरेंटल फ़िलॉसफी है। And that is that I learn from each and every single person whom I meet. चाहे वो मेरी बिल्डिंग का चौकीदार हो, मैं जब चल रही होती हूँ तो मैं लोगों को बड़ा गौर से देखती हूँ। मेरी आदत है, बहुत ऑब्जर्व करती हूँ, मैं बहुत ऑब्जर्वेंट हूँ, और बहुत जल्दी किसी के बारे में मैं कोई राय कायम नहीं करती। तो जब मैं राह पे रास्ते पे भी चल रही होती हूँ तो मैं बड़ा चीज़ों को देखती हूँ, और ऐसी चीज़ें भी मुझे नजर आती हैं जो शायद कोई चलते चलते इग्नोर करके चला जाए। ऐसा इसलिए करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे हर चीज़ में से, हर एक्शन में से, हर इंसान से मुझे कोई ना कोई लाकीमती चीज़ सीखने को मिलती है। तो जब आप इतना सा रास्ता ट्रैवल करके एक सड़क से दूसरी सड़क तक जा रहे होते हैं, तो आप पता नहीं ज़िंदगी के कितने असबाब सीख के जाते हैं। कोई मज़दूर सामान उठाकर जा रहा है तो आप उससे परसीवरेंस सीख लेते हैं कि इतना वज़न होने के बावजूद भी इस शख्स की बोरी इतनी भी नहीं हिलती है। ये शख्स ऐसे के ऐसे चल रहा है जैसे कि जैसे इसको चलना चाहिए। कहीं आप देखते हैं कि किसी आप मजदूर को या किसी फकीर को आप खाने की कोई थैली देते हैं, तो वो उसको खुद खाने के बजाय वो 3-4 लोगों को और बुला करके मिल के खाता है। तो आप ऐसे लोगों से शेयरिंग सीख लेते हैं। तो आपको ऐसे लाकीमती लेसन्स किसी क्लासरूम में, किसी किताब से, किसी ऑथर से, किसी साइंटिस्ट से, किसी डॉक्टर से सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये लेसन्स अल्लाह ताला ने एज प्रॉमिस्ड आपके आसपास रख दिए हैं, और अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने अकल वालों के लिए निशानियां रखी हैं, तो यही वो निशानियां हैं अकल वालों के लिए। तो एज अ टीचर हमें अपने आँख कान खुले रखने चाहिए, और मुंह को बहुत बाद में खोलना चाहिए। पहले आँख और कान से जो भी इनपुट है वो अंदर चला जाए, सोच ले, प्रोसेस हो जाए, और फिर हम अपना इनपुट पेश करें। दूसरा, हम जो भी करते हैं हमें इस बात का ख्याल होना चाहिए। जैसे हुसैन, थोड़ी सी आप तो इस बात को समझते होंगे कि ज़रा भी आपकी कुछ अपीयरेंस हो जाती है सोशल मीडिया के हवाले से या किसी भी और ऐसे हवाले से जहाँ लोग आपको एज अ मॉडल देख रहे होते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी डबल हो जाती है। फिर अगर आपका दिल चाहता भी है कि मैं ये काम करूं, तो आप सोचते हैं कि मुझे लोग देख रहे होंगे, तो आप इसलिए नहीं कर रहे। ये इसलिए आप नहीं सोचते कि मुझे लोग देख रहे होंगे क्योंकि आपकी इमेज पे कोई फर्क पड़ेगा। आप ये सोच रहे होते हैं कि जो मुझे देखते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, कहीं वो भी ये ना करें, और क्या पता वो इस तरीके से ना कर सके। लास्ट ईयर हम टीचर्स डे के इवेंट में बैठे हुए थे, इंस्टीट्यूट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, मिस नाहिद वसी का इवेंट था, एंड आई वाज बीइंग इनवाइटेड देयर टू बी प्रेजेंटेड द अवार्ड ऑफ बेस्ट टीचर ऑफ माय इंस्टीट्यूशन। वहाँ सर अब्बास हुसैन बैठे हुए थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी खूबसूरत बात कोट की। उन्होंने कहा, मैं जर्मनी गया था, और जर्मनी या पता नहीं कोई नाम लिया उन्होंने बड़ी अच्छी सी जगह का। मैं वहाँ गया था और मैं बाहर निकला तो मुझे एक गोलगप्पे वाला नजर आया। मेरा बड़ा दिल चाहा कि मैं गोलगप्पे खाऊं, मगर मैंने नहीं खाए। उन्होंने ऑडियंस से पूछा कि क्यों नहीं खाए मैंने गोलगप्पे, तो सारे लोग हैं, पता नहीं सर पैसे नहीं थे, ये नहीं था, पेट खराब था, ऐसे था वैसे था। He said, क्योंकि उसी रोड पर कुछ स्टूडेंट्स आगे बैठे हुए थे, और मैं नहीं चाहता था कि वो इस तरीके से स्ट्रीट फूड खाएं, तो अनहेल्दी हाइजीनिक कुछ ऐसा मामला था, तो मैं नहीं चाहता था कि वो ये करे। मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, मगर मैंने नहीं खाए।
देखिए फिर जब मैं घर आया तो मैंने घर पे नीचे से मंगवा के खा लिया, क्योंकि फिर मुझे कोई देखने वाला नहीं था। तो जब आपको लोग देख रहे होते हैं तो आप वो दिखाएं उनको जो आप चाहते हैं कि वो ऐसे बन जाएं। तो ये सारा खेल मॉडलिंग का है, ये सारा खेल एक्शन और रिएक्शन का है। तो अगर हम ये वाला हिस्सा कंट्रोल कर लेते हैं दिखाने वाला, तो मेरे ख्याल से जो हम देखना चाहते हैं वो हमें ऑटोमेटिकली नजर आएगा सोसाइटी में। एक्सलेंट एक्सलेंट मैम, 100% ट्रू। और आज एक हमारे व्यूवर ने कमेंट किया है, ज़ारा शमून ने, फॉर ऑल द टीचर्स ड्यू टू योर अमेजिंग एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क वी हैव अचीव अ लॉट इन अवर लाइफ, अ बिग थैंक टू ऑल द टीचर्स फॉर मेकिंग अस व्हाट वी आर। अगेन मैम, the sign of gratefulness that you have. Thanks Hussain. Okay, no problem ma'am. Okay, so thank you very much ma'am Zainab for connecting with me। और आज टीचर्स डे की ज़ीनत को और मज़ीद बढ़ाने के लिए इस शो में मेरे ख्याल से जितने भी लोग आज हमें देखेंगे या देख रहे हैं और यकीनन बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए होंगे और अपने प्रोफेशन के साथ और ज़्यादा इंसाफ करने की कोशिश करेंगे। और हमें चाहिए कि आज हम जिस भी प्रोफेशन में हैं, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो इसके अलावा कोई और प्रोफेशन हो, हमें अपने प्रोफेशन की इज्जत करते रहनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने प्रोफेशन के साथ मज़ीद सिंसेरिटी और मज़ीद डेडिकेशन के साथ काम कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स विद अस। और मैं उम्मीद करूंगा कि फिर से कभी इंशाल्लाह कभी और मौजू पे हम बात करें और लोगों को और ज़्यादा मुतासिर करें। सो थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर जॉइनिंग अस। टेक केयर मैम। थैंक यू सो मच। काफ़ी रिफ्लेक्टिव था, तो मैंने भी अपने बारे में कि मैं क्या सोचती हूँ काफ़ी कुछ सीखा, और आपके साथ बैठकर मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखती हूँ सर। No ma'am, my pleasure ma'am. So okay, so that's all ma'am, thank you very much। So आज का जो हमारा एपिसोड था, जो कि स्पेशल एपिसोड था, जो कि हमने मैडम जैनब के साथ कंडक्ट किया, और मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज मैडम जैनब के साथ आज हमारी आज के दिन हमारी बात हुई और टीचर्स के कुछ रिफ्लेक्शंस हमने जाने, और आज के दिन की अहमियत और आज के दिन की जो मौजू था, जो एप्रिसिएशन और जो हार्ड वर्क जो लोग करते हैं हमारे लिए और उनके बच्चे, और क्योंकि इनका जो मकसद होता है और इनकी जो जीत होती है टीचर्स की, वो यही होती है कि उनसे पढ़ा हुआ बच्चा अगर कल को किसी कामयाबी की मंजिल तक पहुंचता है तो शायद उनके लिए सबसे बड़ी जीत वही है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड और उम्मीद करूंगा कि ये एपिसोड आपके लिए बहुत ज़्यादा मुस्तफीद रहेगा। और स्टे ट्यून्ड टू अस एंड स्टे कनेक्टेड विद हुसैन सफदर हियर फॉर साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेस एपिसोड। थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।